बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 3 and the period is science. This is week number 3 and the video number is 2. In our previous video, in video number 1, we have learned about the materials and their properties. We have learned some materials like rubber, plastic, wood, metals, fabric, and we have learned that what are their properties. Just like metals are shiny, metals are hard, metals are strong, and metals are non-absorbent. Okay, like this plastic is non-absorbent, plastic is soft, and plastic is flexible. Now I am showing you some materials and then we will learn how the materials are used. ये materials का कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है. In this video we will learn the properties of materials and their uses. और उनके uses को हम जो है पढ़ेंगे कि किस तरीके से किन materials को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है. First I am showing you some materials. First is the materials. Then we will learn why we use these materials for making things. Now you can see that this is lenses and you can see this is a box, plastic bottle, this is hard plastic, this is rubber band, pen is made for plastic, pencil is wood. And what is this? This is ceramic. You can see we use ceramic for making vase or for making. We use ceramic for making vase and for making pots and wash basins. You can see this is also a plastic, but it is soft. You can see it can push easily. Then it is soft, but it is hard. This is hard plastic, right? And also this is hard plastic. We use this is hard plastic, and this is metal. What is this metal? It is a plug. We use metal for making plugs, right? And you can see this is wire. This is the wire. Outside wire is plastic, but inside you can see that this is the copper. We used copper for making electrical wires. This is wire and we used copper for making electrical wires, right? And this is fabric. You can see the towel piece. It is soft. It is fabric. And this is clear plastic. You can see easily. This is the clear plastic. And this is glass. We used glass for making measuring cylinders. Then we can see easily the numbering of this and quantity of liquid in this. ठीक है ना, जैसे कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं कि इसके अंदर हम इजीली इसकी क्वांटिटी देख सकें और इसकी नंबरिंग हम देख सकें और कितना हमने इसके अंदर लिक्विड फिल किया है वो इजीली देख सकें. तो इट्स मेक फॉर ग्लास से ये बनता है बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. एंड यू कैन सी दैट ये प्लास्टिक, दिस इज प्लास्टिक, वायर्स एंड दिस प्लग, charger plug is hard plastic and this is soft plastic. You can say easily hard and soft plastic. Now
and this is paper. Paper also have different types, like this is the hard, you can see this is hard paper, ठीक है. But in our books or in papers, this is the soft paper, you can see this is soft and this is hard. So all materials are different types and we use materials according to their properties. Now we have seen all materials, ठीक है, हमने बहुत सारी materials देखे. But do you think that why we use wood for making furniture or why we use metal for making buildings? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यही materials को इस्तेमाल करना चाहिए इन चीज़ों को बनाने के लिए? For example, we could not make fry pan by the woods. Wood का fry pan हम नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते wood का fry pan? Because wood can burn easily. Wood क्या हो सकता है? Easily burn हो जाता है. That's why we cannot make fry pan by wood. We should make fry pan by metals, right? Like this, इस तरह buildings we use metals for making buildings. In all age, in all times, people used to make wood for making buildings. पुराने ज़माने में क्या होता था कि people जो हैं वो houses बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे? वुड यूज़ करते थे. बट नाउ वी यूज़ metals for use buildings, right? You can see in your books also there are some buildings, you can see in page number 92, because metal is strong. We use metal ceramic, and like aluminium for making buildings, for making aeroplanes, for making railway tracks, and for making cars, right? Now one by one we learn about materials and their uses. So first of all we learn about metals. Why we use metals and how do we use metal for making things? Number one is metal. First, as we know that metal is hard, metal is inflexible and metal is non-absorbent. What is metal? Metal कैसा होता है? Metal is hard, now metals have different types, like aluminium, like gold, like copper. They are the types of metals. Now where we use them, हम इन्हें कहाँ इस्तेमाल करते हैं? Like we used aluminium for making can, जैसे पेप्सी कैन आपने देखा होगा, right? Copper, we used copper for making wires, electrical wires. And gold for making jewelry. Another property of metal is shiny. Metal is shiny. All these are shiny in nature. Aluminium, gold and copper are shiny. We can say that metals are shiny. Now come to next material. The next material is rubber. Rubber कैसी होती है? Rubber is flexible. You can see that is rubber band, right? It is flexible, right?
तो रबर इज फ्लेक्सिबल एंड नॉन एब्जॉर्बेंट। एंड रबर इज वीक मटेरियल, इट कैन इजीली ब्रेक। अगर हम इसे ज़्यादा तेजी से पुल करेंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, ये इजीली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इट इज वीक, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज वीक। एंड आल्सो सॉफ्ट, सम व्हेन वी यूज रबर देन वी यूज सम टाइम सॉफ्ट एंड सम टाइम हार्ड। ठीक है ना, हम रबर को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट जगह पे भी यूज कर सकते, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट तरीके से भी इसको यूज किया जा सकता है, और हार्ड, रबर को सॉफ्ट भी बनाया जा सकता है और हार्ड भी बनाया जा सकता है। जैसे ये रबर बैंड है, तो रबर बैंड ये सॉफ्ट रबर यहाँ पे यूज हुई है, लेकिन आपने देखा होगा टायर्स जो कि गाड़ी के अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कार्स के व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, तो वो टायर्स होते हैं वो हार्ड रबर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सम टाइम रबर विल बी हार्ड, कभी कभी रबर हार्ड भी हो सकती है, मतलब उसकी यूज के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को उनके यूजेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब हार्ड हम बना सकते हैं या फिर हम उसे सॉफ्ट भी बना सकते हैं। तो हम कहाँ उसको यूज करेंगे, रबर कहाँ यूज होगी, रबर इज फ्लेक्सिबल, नॉन एब्जॉर्बेंट एंड वीक एंड यूज्ड फॉर मेकिंग रबर बैंड्स, रबर टायर्स, समटाइम यूज रबर शूज। आपने देखा होगा कुछ शूज भी ऐसे होते हैं जो रबर के बने हुए होते हैं। तो जो ये रबर टायर्स होती है, यहाँ जो रबर यूज की जाती है वो कैसी होती है, ये हार्ड होती है। ठीक है, ताकि जो गाड़ी का जो व्हीकल का जो लोड है वो इजीली ये टायर्स बर्दाश्त कर सकें, तो इट इज हार्ड। तो रबर टायर्स कैसे होते हैं, या हार्ड होते हैं। रबर बैंड सॉफ्ट होती है, और रबर शूज भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ताकि हम इजीली उसे वेयर कर सकें, इजी टू वेयर। नंबर थर्ड, नाउ थर्ड मटेरियल इज वुड। वुड कैसी होती है, वुड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वुड नॉन एब्जॉर्बेंट होती है, राइट। वुड कैसी होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि ये पेंसिल है, पेंसिल वुड की बनी है, इट इज इनफ्लेक्सिबल, वी कैन नॉट बैंड इजीली, से हम बैंड नहीं कर सकते, तो इट इज इनफ्लेक्सिबल, वुड इज इनफ्लेक्सिबल। एंड हार्ड नहीं होती, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इजीली ब्रेक नहीं हो सकती। एंड नॉन एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट, वुड इज एब्जॉर्बेंट। इसके अंदर, वुड के अंदर पानी क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, राइट। वुड इज एब्जॉर्बेंट, वुड इनफ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। यूज क्या होता है, ये वुड का यूज क्या होता है, जैसे आपने ये देखा बोर्ड, ठीक है ना, बोर्ड को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये किसका बना हुआ है, बोर्ड, इट इज मेकिंग बाय वुड। इसको हम किससे बनाते हैं, वुड से बनाते हैं। तो वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, वुड फर्नीचर, ठीक है ना। और कहाँ वुड का यूज किया जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी ऐसे घर भी होते हैं जो वुड के बने हुए होते हैं, तो वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस, ठीक है। वुड की स्टेयर्स भी बनाई जाती हैं, बीम्स भी बनाए जाते हैं, स्टेयर्स भी बनाई जाती हैं, वुड बीम्स होते हैं, वुड स्टेयर्स होती हैं। और पुराने ज़माने में जैसे मैंने बताया, ओल्ड टाइम में, ओल्ड एज में जो लोग थे वो किसके घर बनाते थे, वुड के बनाते थे, तो वुड हाउसेस भी हो सकते हैं। तो ये फिर इनके ऊपर पेंट किया जाता है ताकि जो है ये किससे बच सके, वुड के ऊपर अगर हम पेंट कर देंगे ताकि ये पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो, ठीक है ना। तो वुड हाउसेस भी बनते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी 3 मटेरियल्स पढ़े, मेटल, रबर एंड वुड। अब नेक्स्ट हमारा 4th मटेरियल है प्लास्टिक। नाउ नंबर 4th मटेरियल इज प्लास्टिक।
तो प्लास्टिक की नेचर कैसी होती है और प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? प्लास्टिक इज सॉफ्ट, इनफ्लेक्सिबल नहीं होती, फ्लेक्सिबल, नॉन एब्जॉर्बेंट, समटाइम प्लास्टिक विल बी हार्ड, कभी कभी हम क्या करते हैं प्लास्टिक को हार्ड तरीके से भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग lenses, right? Plastic is also transparent. Plastic is used for making lens. You can see that lenses are make for plastic. देख रहे हैं जैसे कि आप ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, we can see clearly through them, हम इनके जरिए easily देख सकते हैं। Sometimes plastic is soft, जैसे कि आपने ये देखा मेरे हाथ में, ये जो जार है ये सॉफ्ट प्लास्टिक का बना हुआ, it can easily push, and sometimes shoppers, दिस इज आल्सो मेक फॉर प्लास्टिक, ये भी किसका बना, आल्सो मेक ऑफ प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है ना। ये शॉपर जैसे आपने देखा तो ये भी सॉफ्ट प्लास्टिक है। एंड देन प्लग कवर, इट इज हार्ड बट इट इज आल्सो प्लास्टिक, लेकिन ये हार्ड है लेकिन ये क्या है, ये भी प्लास्टिक ही है, सही है ना। तो प्लास्टिक को हम उसकी जरूरत के तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे उसकी जहाँ नीड होती है, जैसे प्लास्टिक की नीड कहाँ पे होती है, जहाँ लगेगा हमें सॉफ्ट प्लास्टिक यूज करनी है तो वहाँ हम प्लास्टिक को सॉफ्ट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक यूज नहीं हो सकती ताकि ये, क्योंकि यहाँ पे हमें ताकि ये इजीली क्या ना हो, टूटे ना, ब्रेक ना हो, तो हमने यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज किया है। तो प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग, पहले हम सॉफ्ट प्लास्टिक को देख लेते हैं कि कहाँ यूज हुई, मतलब इसके डिफरेंट वेज है। लेंसेज में यूज हुई, सही है ना। लेंसेज में जो प्लास्टिक यूज हुई वो कैसी थी, ट्रांसपेरेंट थी। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया, प्लग, इलेक्ट्रिक प्लग जो होते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक यहाँ पे यूज हुई है इलेक्ट्रिक प्लग में। तो यहाँ प्लास्टिक कैसी थी, इलेक्ट्रिकल प्लग के अंदर हार्ड, सही। और इसके अलावा प्लास्टिक बैग जो होते हैं, वहाँ पे भी प्लास्टिक यूज होती है प्लास्टिक बैग्स के अंदर, तो वहाँ जो प्लास्टिक होती है वो सॉफ्ट होती है, सही। और प्लास्टिक की एक और प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ताकि वो इसे हम इजीली अपने हिसाब से बैंड कर सकें। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये जार बनाने के लिए प्लास्टिक को क्या किया इन्होंने, बैंड कर लिया, फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पे इस जार को बनाने के लिए प्लास्टिक कैसे हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई फॉर मेकिंग जार। बॉटल्स, जैसे ये वाटर बॉटल है, ठीक है ना, दिस इज फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। So we use plastic according to their properties. See, sometimes plastic will be transparent, sometimes hard, soft, flexible. All are non-absorbent. इन सब की एक एक प्रॉपर्टी, ये भी एक ही, सारे क्या है, नॉन एब्जॉर्बेंट। तो जो प्लास्टिक हम यूज, जहाँ से प्लास्टिक की जैसी नीड होती है उसी तरीके से प्लास्टिक को यूज किया जा सकता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि पेंसिल, ये जो कैस है, लेंसेज केस, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है बट इट इज हार्ड, इट इज आल्सो अ हार्ड प्लास्टिक, सही। तो इट इज द फोर्थ मटेरियल, प्लास्टिक। नाउ वी हैव लर्न अबाउट मेटल्स। हमने कौन कौन से वो पढ़ लिए हैं, मटेरियल्स, मेटल्स, रबर, प्लास्टिक, wood. Number 3 wood, number 4 plastic. Now number 5 is fabric. Now come to fifth material is fabric. So फैब्रिक कैसा होता है, प्रॉपर्टीज कैसी होती है फैब्रिक की, जस्ट लाइक दिस इज अ टॉवल पीस, it is soft, right, and it is flexible also.
तो फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड फैब्रिक इज एब्जॉर्बेंट। फ्लेक्सिबल कैसा होता है, फैब्रिक कैसा होता है, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड एब्जॉर्बेंट। तो हाउ वी यूज्ड, हम इसे यूज्ड कैसे करेंगे, कहाँ यूज्ड करेंगे, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ठीक है ना, क्लॉथ्स कपड़ों के कपड़े बनते हैं इससे, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, टॉवल्स, ब्लैंकेट्स एंड कर्टन्स, टॉवल, ब्लैंकेट्स एंड कर्टन्स। इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, फैब्रिक यूज करते हैं, सही। समटाइम फैब्रिक को, जैसे समटाइम शूज बनाने के लिए भी फैब्रिक का यूज किया जा सकता है, जैसे आपने देखे होंगे जो खुद से होते हैं, जैसे वो फैब्रिक के बने हुए होते हैं। तो समटाइम वी यूज्ड फैब्रिक फॉर मेकिंग शूज आल्सो। एंड आपने वो भी देखा होगा, जैसे कि हम जब कैंपिंग करते हैं तो कैंपिंग के अंदर फैब्रिक के टेंट यूज किए जाते हैं, तो जो वो फैब्रिक यूज की जाती है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सी कैसी होती है, हार्ड होती है। तो फैब्रिक इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग टेंट्स एंड फॉर मेकिंग शूज। सही, जैसे आपने देखा होगा जो शादी वगैरह में टेंट लगाए जाते हैं और कुछ ऐसे शूज भी होते हैं जो हम यूज करते हैं, वो फैब्रिक के बने होते हैं। तो फैब्रिक कहाँ कहाँ यूज होती है, फैब्रिक इज यूज फॉर क्लोथ्स, टॉवल, ब्लैंकेट्स एंड कर्टन्स एंड आल्सो यूज फॉर मेकिंग टेंट्स एंड शूज, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मटेरियल। नेक्स्ट मटेरियल इज ग्लास। नंबर 6 इज ग्लास। तो ग्लास की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ग्लास इज इनफ्लेक्सिबल, नॉन एब्जॉर्बेंट, हैवी एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि इजीली ब्रेक हो सकता है, ब्रिटल मीन्स इजी टू ब्रेक, मतलब ये इजीली ब्रेक हो सकता है, जैसे गिरने पे ग्लास टूट जाता है फौरन, तो क्या कहेंगे हम, ब्रिटल की मीनिंग है इजीली ब्रेक। तो एंड ग्लास इज यूज्ड फॉर, कहाँ कहाँ यूज होता है ग्लास, यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेज, सही ना। समटाइम्स हम ग्लास के लेंसेज भी बनाते हैं, तो लेंसेज में यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग लेंसेज, और यूज फॉर मेकिंग विंडो ग्लास और डोर ग्लास, जैसे आपने देखा होगा विंडो ग्लास, यूज फॉर मेकिंग glass is inflexible, non-absorbent, heavy and brittle. We use glass for making lenses, window glass, and we use for measuring cylinder. ठीक है, जैसे आपने देखा मेजरिंग सिलेंडर, हम यहाँ पे क्यों ग्लास का यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन सी इजीली थ्रो देम, इसके अंदर कौन सा लिक्विड है, क्या है और किसकी कितनी क्वांटिटी है, वो इजीली हम देख सकें, इसके लिए हमने क्या यूज किया, ग्लास यूज किया। तो जो बिग डिफरेंस है बिटवीन प्लास्टिक एंड ग्लास इज, प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रेक, ठीक है ना, प्लास्टिक क्या होगा, ब्रेक नहीं होगी, जैसे व्हेन आई ड्रॉप दिस बॉटल एंड इट विल नॉट बी ब्रेक, बट इफ आई ड्रॉप दिस then it will be break easily. So it is the bigger difference between plastic and glass. So we use lenses
इंस्टेड ऑफ ग्लास वी यूज लेंसेज फॉर प्लास्टिक, ठीक है ना। हम जो है ग्लास के बजाय कौन से लेंसेज यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के लेंसेज यूज़ करते हैं, ताकि इट विल नॉट बी ब्रेक इजीली, ताकि जो प्लास्टिक के जो लेंसेज हैं वो इजीली क्या नहीं हो सके, ब्रेक नहीं हो सके। तो इसी पेज पे जैसे आपका ये ट्राई इट आउट भी है, पेज नंबर 98। ट्राई इट आउट में व्हाट इज अनदर मटेरियल दैट कैन बी यूज टू मेक स्पेक्टिकल लेंसेज। स्पेक्टिकल लेंसेज के लिए और कौन सा दूसरा मटेरियल यूज किया जा सकता है। हाउ इज दिस मटेरियल बेटर देन ग्लास इन मेकिंग लेंसेज। तो ये ग्लास से क्यों बेटर होगा, बिकॉज ग्लास विल बी ब्रेक इजीली। ग्लास जैसे अगर हम इसे ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, तो ग्लास क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा इजीली। लेकिन जैसे अगर हम प्लास्टिक को गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकती। तो अनदर मटेरियल इज प्लास्टिक। वी यूज प्लास्टिक फॉर मेकिंग लेंसेज सो दैट इट विल नॉट बी ब्रेक इजीली, ताकि जो है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। नाउ नंबर 7 मटेरियल इज सेरेमिक। This is the last material, number 7, ceramic. Ceramic कैसा होता है, ceramic is inflexible, non-absorbent, hard, right? Ceramic is inflexible, non-absorbent and hard. Where we used, हम कहाँ यूज करते हैं, we used for making vase। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के अंदर वास रखे होते हैं, ठीक है ना, for making vase and flower pots, wash basins, we use ceramic for making vase, flower pots, wash basins, ठीक है ना। और जैसे आपने देखा है टाइल्स वगैरह जो बनते हैं वो भी ceramic के होते हैं, जैसे कि देखें आप, ठीक है। दिस इज आल्सो अ ceramic। Now these all are the materials and now we have learned how they used। हमने अब ये पढ़ लिया जैसे कि हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, हम ये सब हमने अब मतलब हमने पढ़ लिया, ठीक है। समटाइम्स वी यूज़ मटेरियल, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साथ 1 से 2 मटेरियल को मिला के भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें उनको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा हम क्या कहते हैं, इसको डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल्स कहते हैं, सही। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इन फैब्रिक इज एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना। फैब्रिक कैसा होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, बट लेकिन जो स्विमिंग सूट होते हैं वो भी फैब्रिक के बने होते हैं। एंड यहाँ पे फैब्रिक कैसा होता है, नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चेंजेस नाउ डेज क्या होता जा रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं और स्विम सूट्स वगैरह के अंदर और बहुत सारे ऐसे स्पेस शटल है उसमें मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है और डिफरेंट मटेरियल्स को एक साथ मिला के यूज़ किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये स्विम सूट, ठीक है। एंड नाउ दिस, सही ना, ये यहाँ पे कहाँ रखा हुआ है, स्टफ पे रखा हुआ है, लेकिन इट कैन नॉट बी ब्रेक। ये ब्रेक नहीं हो रहा है, जैसे इसमें आग लग रही है लेकिन ये इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्लास हार्ड हो गया, ठीक है ना। नॉर्मल ग्लास ब्रेक जब हॉट होगा, जब ज़्यादा हॉट होगा तो जो नॉर्मल ग्लास होगा वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको हमने मोर सूटेबल बना दिया है और इसको हमने इजीली भी यूज़ किया था ताकि ये इजीली क्या नहीं हो, ब्रेक नहीं हो। इसी तरीके से कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये साइकिल, यू कैन सी दिस, देयर इज अ साइकिल,
जैसे आपने देखा डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट यूजेस। सही, नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे आपको यहाँ पे बाईसाइकिल नजर आ रही है, ठीक है, बाईसाइकिल कैसी नजर आ रही है, इट इज मेड ऑफ अ फ्यू मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल रबर हैंडल बार, ठीक है, जैसे ये हैंडल है इसको हमने किससे बनाया है, रबर से बनाया है। क्यों हमने इसको रबर से बनाया है, ताकि ये स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है और सॉफ्ट है, इजीली हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, राइट। जब अपने हाथों से इजीली इसको यहाँ पे पकड़ सकते हैं। अगर ये हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता तो क्या होता है, इससे आप इजीली इसे होल्ड नहीं कर सकते। इसी तरह जो सीट है वो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की मटेरियल बनी हुई है, ठीक है। प्लास्टिक कैसी होती है, प्लास्टिक जो है सॉफ्ट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरीके से यहाँ देखें रबर टाइल का यूज़ किया गया, जो फ्रेम बनाया है ये मेटल का बनाया है। सही है, तो ये जो बाईसाइकिल है इसके इसमें पार्ट्स कौन कौन से थे और कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए, जैसे फ्रेम है, स्पॉक है, सीट है, हैंडल बार, प्रोटेक्टर और टायर, ये सारे इसके पार्ट्स ऑफ बाईसाइकिल थे। और इनको यूज कहाँ गया, फ्रेम को यूज किया गया है। फ्रेम जो है उसका जो मटेरियल है वो कौन सा है, मेटल है, ठीक है। और स्पॉक का मटेरियल कौन सा है, ये स्पॉक किसे कह रहे हैं, ये जो जाल से नजर आ रहा है ये क्या कहलाता है, स्पॉक। इसका मटेरियल कौन सा है, इसका भी मटेरियल मेटल है। सीट का मटेरियल प्लास्टिक है। हैंडल बार प्रोटेक्टर का मटेरियल क्या है, रबर। टायर का रबर। इन सबको हमने क्यों यूज किया, अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज। मेटल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, मेटल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, प्लास्टिक सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, रबर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड रबर सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, राइट। जैसे अभी इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए आप सेरामिक का भी यूज़ करते हैं और मेटल का भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे आपने देखा, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल्स। डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल्स का क्या मतलब है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकें। जैसे मैंने अभी बताया था स्विमिंग सूट्स, ये स्विमिंग सूट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो जो मैट फैब्रिक, ये फैब्रिक जो यूज़ की गई है ये नॉन एब्जॉर्बेंट है और स्ट्रेचेबल है, ताकि इजीली वेयर कर सकें, और ये वाटर प्रूफ है, नॉन एब्जॉर्बेंट है, सही ना, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। इसी तरह से यहाँ पे क्या यूज़ किया, जो मैन मेड मटेरियल्स था, यहाँ पे सम पार्ट्स ऑफ स्पेस शटल, इसके जो सम पार्ट्स जो है यहाँ पे मैन मेड मटेरियल्स से बने, मतलब 2 या 3 मटेरियल्स को मिला के बनाए गए। इसी तरह से यहाँ क्या बनाएंगे, बाउल बनाया है ग्लास का, ग्लास इजीली ब्रेक हो जाता है, बट लेकिन यहाँ पे जो बाउल बनाया है ग्लास का ही है, बट लेकिन ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पे फाइब्री ग्लास कैनोए है, ठीक है, एंड प्लेवुड एंड रेनफोर्स कंक्रीट। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है ताकि ये इजीली ब्रेक नहीं हो सके। मतलब 2 से 3 मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाया है ताकि ये इजीली क्या नहीं हो सके, ब्रोक नहीं हो सके। तो व्हाट यू हैव लर्न, अ डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल गिव अस अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स टू चूज फ्रॉम फॉर डिफरेंट यूजेस। तो डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल्स का क्या मतलब होता है कि मटेरियल्स को हम और डिफरेंट तरीके से क्या कर सकें, यूज कर सकें। नाउ देयर इज अ ट्राई टायर ऑन पेज नंबर 103। ट्राइट आउट में यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि क्या ये सुइटेबल मटेरियल है इन चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये वो चेयर है, चेयर किसकी बनी हुई है, वुड की, बट लेकिन इसके लेग्स किसके बना दिए यहाँ पर, रबर के। तो क्या हो गई, जैसे यहाँ बैठे ये रबर के जो लेग्स है, फ्लेक्सिबल है रबर, तो ये क्या हो गई है, पुश हो गई। इसी तरह से यहाँ पे प्लास्टिक यूटेंसिल्स यूज़ कर लिए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इजीली ब्रेक हो रहे हैं। और ये क्या है यहाँ मेटल सूट, तो सूट क्या मेटल का होना चाहिए। और ये पेपर बैग इज सुइटेबल फॉर होल्ड वाटर। तो अभी हमने ये देखना है कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए। सबसे पहले आ चेयर विथ रबर लेग्स, तो रबर इज suitable material or not suitable? तो रबर is not suitable for making legs, for making chair legs, we should use
wood because wood is strong. We should use wood. हमें क्या यूज करना चाहिए? wood यूज करनी चाहिए because wood is strong. Okay, now next is plastic utensils. फोक और नाइफ और जो स्पून है वो प्लास्टिक के क्या होंगे? इजीली ब्रेक हो जाएंगे. तो हमें कौन सा मटेरियल इसकी जगह यूज करना चाहिए? तो प्लास्टिक इज नॉट सुइटेबल फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. वी शुड यूज मेटल. Metal because metal is strong or hard. Because metal is hard. Number 3, a metal suit. अगर हम मेटल का सूट पहन लेंगे तो क्या होगा? वी फील नॉट कंफर्टेबल. ठीक है ना, हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और वी कुडंट मूव इजीली, और हम इजीली मूव भी नहीं कर सकेंगे. सो वी शुड यूज फैब्रिक. बिकॉज फैब्रिक इज सॉफ्ट. Number 4, a paper bag to hold water. It is suitable. पेपर बैग के अंदर वाटर होल्ड नहीं हो सकता है बिकॉज जो पेपर है वो क्या है? एब्जॉर्बेंट है. सो वी शुड यूज, हमें क्या यूज करना चाहिए उसकी जगह? पेपर बैग की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए? वी शुड यूज प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज एब्जॉर्बेंट. हमें क्या यूज करनी चाहिए? प्लास्टिक यूज करनी चाहिए बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन एब्जॉर्बेंट. प्लास्टिक कैसी होती है? नॉन एब्जॉर्बेंट. इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा. राइट. This is the try it out on page number 103. Now our chapter is complete. हमारा चैप्टर क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो गया. In this chapter we learned, हमने क्या सीखा? We have learned about materials, their properties and their uses. सही, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. और यहाँ पे हमने कौन कौन सा मटेरियल्स पढ़े हैं? मेटल, रबर, वुड, प्लास्टिक, फैब्रिक, ग्लास एंड सेरामिक. और हमने फिर इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी. सही है ना, कि कौन सा मटेरियल सुइटेबल होता है और कौन सा मटेरियल जो है वो सुइटेबल नहीं होता. तो चेयर के लिए जो है वो रबर लेग सुइटेबल नहीं थे, तो उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? वुड यूज़ किया. इसी तरह से प्लास्टिक के यूटेंसिल सुइटेबल नहीं थे, उसकी जगह हमने मेटल का यूज़ किया. मेटल सूट इज नॉट सुइटेबल, सो वी यूज फैब्रिक. पेपर बैग टू होल्ड वाटर इज नॉट सुइटेबल, सो वी यूज प्लास्टिक. राइट. Now their chapter number 4 is completed. In our next video we will learn about chapter number 5. Now write down the homework. Make a list of materials and also write their uses. कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है. In our next video we will learn chapter number 5. Till then, take care. Allah.